I am Sachin Srivastava, Faculty of Finance and Economics. Today, I am going to start a lecture series on managerial economics, which is going to be very helpful for the students of MBA, BBA, BCom, MCom, as well as for the management students. Okay, thank you. Now, I am going to start the series of managerial economics. We will start from the basics of managerial economics lecture series. This lecture series cover whole managerial economics, which cover the understanding of economics and its implication in business. Okay, first of all, now coming to the managerial economics. What is managerial economics? It is necessary to understand. What is it? It is the branch of economics. It is one of the branch of economics. Managerial economics is the study of economic theories, principle and concept which is used in managerial decision making. जब हम लोग मैनेजर डिसीजन मेकिंग करते हैं एट दैट टाइम जो हम इकोनॉमिक थ्योरीज प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, इसी को हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की भाषा में समझते हैं. In a next language, managerial economics is the application of various theories, concepts, and principles of economics in the business decision. It also includes the application of mathematical and statistical tool in management decision. This is the theory and application in managerial decision making. Economic theories, principle and concept are applied in managerial decision making. It is the whole which is understand as a managerial economics. जब कभी इकोनॉमिक थ्योरीज को, प्रिंसिपल को और कॉन्सेप्ट को हम लोग मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं तो ये ओवरऑल बन जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. This we can understand with the help of this flow chart. This is the managerial decision choice of what is managerial decision? It is the choice of product, choice of production methods, choice of prices. कि हमारे पास प्रोडक्ट की चॉइस क्या है, प्रोडक्शन मेथड की चॉइसेस क्या क्या हैं और प्राइस की चॉइसेस क्या क्या हैं. इनको हम लोग अप्लाई करेंगे. इसको अप्लाई करेंगे मैनेजरियल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल इन डिसीजन मेकिंग and applied of analytical tools such as mathematical and statistical tools, and it whole comes and create managerial economics. Now I think it is clear what is managerial economics. Now coming to the next in very easy language, जैसे I already told you people the managerial economics is made of two things, economics and decision making. What comes in economics? Theories, principles, concept. In decision making, we find out the best alternative which is available for us. Whenever we decide anything, there are two factors. First one is risk and second one is uncertainty. There is always a risk and uncertainty. जहाँ पे रिस्क होता है वहाँ पे अनसर्टेनिटी भी होती है. अब हम लोग बहुत देर से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को दो तरीके से देख रहे थे, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग. तो सब हम लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. इकोनॉमिक्स इज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंसेज. इकोनॉमिक्स क्वीन होती है, सोशल साइंस की क्वीन बोला जाता है. इकोनॉमिक्स दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ओकियस और नोमस. ओकियस का मतलब होता है हाउस और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट. तो अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, इकोनॉमिक्स इज द प्रैक्टिकल साइंस एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. जेएस मिल ने इसकी डिफिनेशन दी है कि the practical science of production and distribution of wealth is known as managerial economics. I think it is clear now. It is the study of how people produce and spend income. कैसे लोग प्रोड्यूस करते हैं और उससे क्या इनकम होती है, उसकी स्टडी को ही हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं. It talk about the economic activity and economic problem. ये economic activity के बारे में बताता है, economic problem के बारे में बताता है. It is the study of logic choice between scarce resources and ultimate wants. हम सभी जानते हैं कि economics कहाँ पे काम करता है. हमारी बहुत सारी unlimited wants हैं और resources बहुत scarce हैं, और unlimited want और limited resources के बीच को जो मैनेज करता है उसी को बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज टू गेट द आंसर टू बेसिक क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce.
हमें क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है, इन सब का जवाब जो देता है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कमिंग economics, in economics there are two branches, mainly two branches. Microeconomics means small or individual. जब कहीं कहीं पे भी माइक्रो की बात की जाए, इसका मतलब है कि हम छोटी चीज के बारे में बात कर रहे हैं या इंडिविजुअल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। The term micro comes from the Greek word micros, which means small or individual. Macroeconomics means group or whole. The term macros comes from the Greek word macros, which means large or whole. जहाँ पे हम लोग माइक्रो की बात करेंगे वहां पे स्मॉल या इंडिविजुअल के लिए बात करेंगे, जहां पे हम लोग मैक्रो की बात करेंगे वहां पे हम होल के लिए बात करेंगे, या फिर बहुत सारे लोगों को मिलके लार्ज बात करेंगे। चलिए हम लोग अब समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। Microeconomics, it is the study of particular firm, particular household, individual prices, wages, incomes, individual industries, particular industries। जब कभी भी हम लोग किसी सिंगल चीज की बात करते हैं, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है particular household, individual prices, wages, incomes, individual industries एंड पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज। जब किसी एक स्पेशल चीज के बारे में बात की जाएगी तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। सम ऑफ द थ्योरीज व्हिच कम अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, देयर आर, कुछ यहाँ पे थ्योरीज हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। उनमें से है थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, इन सारी की थ्योरी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, कि प्रोडक्शन और कॉस्ट की क्या क्या थ्योरी है, इन सारी थ्योरीज के बारे में भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइस, मार्केट का प्राइस क्या है उसको डिसाइड करने के लिए उसकी थ्योरीज जो है उन सबको इसमें डिस्कस करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट भी इसी में डिस्कस होता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज, ये इंडिविजुअल चीजों के साथ डील नहीं करता है, बल्कि इट इज बट द एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज, जो इंडिविजुअल करके बहुत सारा होल बना लेता है, उसके बारे में जो बात करता है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज क्लियर। सम ऑफ द थ्योरीज व्हिच कम अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी थ्योरीज हैं जिनको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में थ्योरी को, जनरल प्राइस लेवल के बारे में, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक ग्रोथ, दीज आर द थ्योरीज व्हिच कम अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ इट इज नेसेसरी टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थ्योरीज। फर्स्ट वन इकोनॉमिक्स, सेकंड वन इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड वाइडर स्कोप, जो इकोनॉमिक्स है उसका कॉम्प्रिहेंसिव और वाइडर स्कोप है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अपने आप में नैरो होता है और लिमिटेड होता है। इट हैज बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इन नेचर। इकोनॉमिक्स जो होता है माइक्रो भी होगा मैक्रो भी होगा, बट इट इज एसेंशियली माइक्रो इन नेचर एंड मैक्रो इन एनालिसिस। ये जो माइक्रो होता है नेचर में, और एनालिसिस जब हम लोग करते हैं इसकी तो मैक्रो लेवल पे करते हैं। इट इज बोथ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव साइंस, but on the other hand managerial economics is a normative science. It is concerned with the formulation of theories and principle, ये theories और principle के से formulation हुआ है इसका। It is concerned with the application of theory, यहाँ पे theory के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे application की theory के बारे में पढ़ रहे हैं। It is discuss general problem, ये general problem को बात करता है। It discuss with individual problem related to any firm, any company, any individual. When we think or talk about something special or something related to the personal, that it comes to managerial economics. Now coming to the next slide, nature of managerial economics. managerial economics के क्या क्या natures हैं उनको हम लोग समझते हैं। साइंस एज, क्या है ये, साइंस एज वेल एज आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये साइंस है और आर्ट है डिसीजन मेकिंग का। इट इज एसेंशियली माइक्रो इन नेचर बट मैक्रो इन एनालिसिस। I already told you in the last slide कि ये माइक्रो होता है नेचर में और मैक्रो होता है एनालिसिस में। It is mainly a normative science but positive in analysis। ये एक नॉर्मेटिव साइंस होता है बट
जब कभी एनालिसिस करते हैं तो हम लोग पॉजिटिव एनालिसिस करते हैं। इट इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज, इसमें क्या होता है, थ्योरीज का एप्लीकेशन होता है, एंड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हमारी थ्योरीज और प्रिंसिपल होते हैं इकोनॉमिक्स के, उनका हम लोग जो एप्लीकेशन करते हैं वो किसमें आता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में होता है। इट डिस्कस इंडिविजुअल प्रॉब्लम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इट इज डायनामिक इन नेचर नॉट अ स्टैटिक, जो हमारी डिमांड है, सारी चीजें जो किसी भी कंपनी से रिलेटेड, वो क्या होती है, हमारी नेचर में डायनामिक होती है, ना कि स्टैटिक। इट डिस्कस द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ फर्म, ये एक फर्म के इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में बताता है। इट कंसंट्रेट ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम मींस होता है कि मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम, मैक्सिमम आउटपुट एंड मिनिमम इनपुट। आई थिंक इट इज क्लियर। इसको अब फिर हम समझते हैं कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इज देयर एनी स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अगर कोई भी स्कोप है तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। और इसकी स्कोप क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, प्राइसिंग डिसीजंस, प्रॉफिट मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एनी फर्म। Now coming to the next slide, managerial economics and decision making. First हमें ये भी समझना जरूरी है, अभी हमने समझ लिया इकोनॉमिक्स क्या है, अब हम लोग समझते हैं डिसीजन मेकिंग क्या है। डिसीजन मेकिंग इज डिसीजन मेकिंग ऑन इंटरनल अफेयर्स, जो हमारे इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, डिसीजन मेकिंग हम अपने इंटरनल फैक्टर के लिए भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर के लिए भी कर सकते हैं। इंटरनल फेयर टॉक ऑन इंटरनल इन्वायरमेंट, जो इंटरनल फैक्टर होते हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड डिसीजन, जो हमारे प्रोडक्शन डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन है, मार्केटिंग डिसीजन है और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड डिसीजन है, वो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज में आ जाएंगे। एक्सटर्नल फैक्टर हमारे होते हैं जैसे कि पेस्ट एनालिसिस, political, economical, social and technological, these are the factors which is outside of your firm, so it comes into the external environment. I think it is clear now. Now coming to decision making, हमें पता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे उस काम के सक्सेसफुल होने में बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है, तो नथिंग कैन बी एक्सपेक्टेबल बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट चेंज इन द एनवायरनमेंट बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। जब हम लोग कुछ भी करते हैं तो उस किसी भी चीज की पूरी तरीके से सक्सेसफुल होने की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, डे बाय डे इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। रिस्क क्या है, इट इज द सिचुएशन व्हिच कम अंडर अनसर्टेनिटी, जहां पर अनसर्टेनिटी होती है वहां पे अपने आप रिस्क उत्पन्न हो जाता है। डिसीजन, अब हमें कोई एक डिसीजन लेना है तो डिसीजन, हाउ टू टेक डिसीजन, हम कैसे डिसीजन को लेंगे, बाय यूजिंग इकोनॉमिक मॉडल्स। हम जब कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो वहां पे हम लोग इकोनॉमिक मॉडल को अप्लाई करेंगे और उसके हेल्प से ही हम कोई डिसीजन को लेंगे। इकोनॉमिक मॉडल्स, कौन कौन से इकोनॉमिक मॉडल हैं जो हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इकोनॉमिक मॉडल, पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक मॉडल है क्या। इकोनॉमिक मॉडल इज द स्ट्रक्चरल एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग और डेवलपिंग सॉल्यूशन बाय यूजिंग बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल। बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल को हम यूज करके जब हम उनके सॉल्यूशन की तरफ सॉल्यूशन डेवलप करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक मॉडल। अब उसमें हमारे कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं, थ्योरीज भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी होती है और मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक भी हम यूज कर सकते हैं। जब कभी भी हम इकोनॉमिक मॉडल डेवलप करते हैं जब सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ पे हमारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, क्वांटिटीज, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल टूल्स भी यूज करते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर इकोनॉमिक मॉडल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द स्टेप टू कंस्ट्रक्ट इकोनॉमिक मॉडल। हम कैसे कोई भी इकोनॉमिक मॉडल को डेवलप करते हैं या कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर हम उस प्रॉब्लम को जब डिफाइन कर लेंगे तो उसके लिए एक हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करेंगे, एक हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल कलेक्ट द डेटा कलेक्ट करेंगे, उस डेटा को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस ऑफ डेटा यूजिंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। जो हमारे पास डेटा आ जाएगा उस डेटा को हम लोग इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल को यूज करेंगे, क्वांटिटेटिव टेक्निक लगाएंगे, फिर
उसको अप्लाई करने के बाद हम लोग जो पहले हाइपोथेसिस बनाए थे उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रिजल्ट को एवेल्युएट करेंगे और जब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा तो हम एक फाइनल डिसीजन पर पहुंच जाएंगे। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स, कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल है, हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल, these are the basic principle. First one is the lead written here over here, opportunity cost principle. Second one is marginalism principle. Third one is acute marginalism principle. Fourth one incremental principle, time perspective principle, discounting principle. अब हम इन सारे जितने भी प्रिंसिपल हैं उनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, चॉइस इन्वॉल्व सैक्रिफाइस। जब कभी भी हम कोई चॉइस लेते हैं तो हम कुछ ना कुछ उसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं। द कॉस्ट इन्वॉल्व विद द सैक्रिफाइस, इट इज द कॉस्ट ऑफ एन नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी विच इज लॉस्ट विल बी कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि हमें कोई डिसीजन लेना है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, 100 रुपये वी हैव 100 रुपीज कैन बी यूज फॉर परचेजिंग बुक और ईटिंग अ पिज्जा। हमारे पास 100 रुपया है, हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम एक बुक परचेज कर लें या फिर 100 रुपये का एक पिज्जा खा लें। और या एक और इन्होंने चॉइस दे रखी है कि परचेजिंग ऑफ स्टेशनरी। इन तीनों चीज़ों में से हम कोई एक चीज़ कर सकते हैं 100 रुपये में। तो अगर हम इनमें से कोई एक चीज़ को यूज करेंगे तो फिर दूसरी दो चीज़ें, दो अल्टरनेटिव हमें उनको छोड़ना पड़ेगा। जो हम दो अल्टरनेटिव छोड़ रहे हैं उनको हम लोग बोलेंगे सैक्रिफाइंग कॉस्ट। इसको हम लोग थोड़ा एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोस्पेक्ट से समझते हैं। हमारे पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उस एग्रीकल्चर लैंड पे खुद से खेती करें और खेती करके जो प्रोडक्शन होगा उसके बाद जो हमारे पास उसमें बच के आएगा वो पैसा आएगा। दूसरा हमारे पास ये एक और तरीका है कि हम चाहें, हमारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम उस लैंड को रेंट पे दे दें कि 50,000 रुपये आप ले लीजिए और 50,000 मुझे दे दीजिए, और 50 ये लैंड आप रख लीजिए, लैंड आपकी हो गई 1 साल के लिए, 50,000 रुपये मुझे दे दीजिए। उन्होंने मुझे 50,000 रुपये दे दिया, मैंने उनको लैंड 1 साल के लिए दे दी। अब मेरे पास पैसे आ गए तो क्या मैं उस पर काम कर सकता हूँ? नहीं, हम उस लैंड पे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब की तो दूसरी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाया गया है यहाँ पे कि हमारे पास C1 होगा तो कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, C होगा तो कहाँ पे होगा, A होगा तो कहाँ, A to B जाने में हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। वी विल डिस्कस फर्दर इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो। नाउ कमिंग टू द मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड मार्जिनल कॉस्ट, कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल प्रॉफिट बेनिफिट। Marginal cost is the cost which incurred to produce the next or one more unit। जब हम कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन में अगर कोई एक और यूनिट हमको प्रोड्यूस करना है, उसके लिए जो कॉस्ट लगेगी उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू इज द बेनिफिट विच गेट्स बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर और नेक्स्ट यूनिट। जो हम लोग एक और यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे जो रेवेन्यू आने वाला है उसको बोलेंगे हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू। कॉस्ट विल बी लेस एंड बेनिफिट विल बी मोर। अगर हमारी कॉस्ट कम होगी तो फिर बेनिफिट हमारे ज़्यादा होंगे, अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और बेनिफिट हमारे कम हो जाएंगे तो हम लोग उसमें भी जा सकते हैं। अब मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। Marginal cost, you people can write it, marginal cost equal to total cost minus total cost n minus 1. Marginal revenue equal to marginal revenue, total revenue of n product minus total revenue of n minus 1 product. Decision rule, if marginal revenue is more than marginal cost, then we will take the chance. If it is equal to marginal revenue equal to marginal cost, then we will think over it. But if हमारा marginal revenue marginal cost से अगर कम हो जाता है तो फिर हम लोग वो डिसीजन नहीं लेंगे, हम नया एक और यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि एक्यू मार्जिनल प्रिंसिपल, ये एक्यू मार्जिनल प्रिंसिपल होता क्या है। Allocation of scarce resources on different alternative uses should be equally distributed। जो हमारे पास स्क्योर्स रिसोर्सेज हैं ऑन डिफरेंट। नाउ कमिंग टू द
नाउ कमिंग टू द इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है, हम लोग को समझना जरूरी है। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल गिव्स एन आइडिया। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल हमें एक आइडिया देता है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, नॉट ओनली विद वन मोर प्रोडक्ट, केवल एक प्रोडक्ट से, इट कुड बी एनी क्वांटिटी, ये कोई भी क्वांटिटी तक हो सकता है, टिल द प्रॉफिट एग्जिस्ट। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल हमें ये बात बताता है कि हम किसी प्रोडक्ट को तब तक बढ़ा सकते हैं जब तक वो हमें प्रॉफिट देता है या प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है। जहां तक अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्रॉफिट कैन बी एग्जिस्टेड, कि प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है आइदर बाय इंक्रीजिंग सेल, या तो सेल बढ़ाकर, और टोटल रेवेन्यू, या टोटल रेवेन्यू को बढ़ाकर, या फिर टोटल कॉस्ट को कम करके हम लोग इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल को, प्रॉफिट को बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर टोटल कॉस्ट आपकी टोटल रेवेन्यू से कम है, अगर हमारी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कम लग रही है, रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, तब हम लोग इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल को अप्लाई करके वहाँ पे इंक्रीमेंटल चॉइसेस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल, जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद वहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं कि हम इसको शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करें या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करें। शॉर्ट ड्यूरेशन में हमारे पास कम से कम समय के लिए करते हैं, क्यों करते हैं इसको हम लोग समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल डिसीजन शुड बी अंडर टू फॉर्मेट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, बिकॉज ऑफ द डिसीजन कैरेक्टरिस्टिक्स। डिसीजन कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम लोग इसको दो तरह से देख सकते हैं, लॉन्ग रन के लिए और शॉर्ट रन के लिए। सो ईच डिसीजन शुड बी मेड इन शॉर्ट रन बेसिस एज वेल एज लॉन्ग रन बेसिस। जो कुछ भी डिसीजन में लेना है उसको दो बेसिस पे लेना है, शॉर्ट और लॉन्ग रन। अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट रन डिसीजन द लॉन्ग रन डिसीजन विल बी गेट चेंज। जो हमारे शॉर्ट रन डिसीजन है उनके बेसिस पे हम लोग लॉन्ग रन डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। Now coming to discounting, now we are going to understand the discounting principle. According to this principle, if decision affect cost and revenue in long run, all these cost and revenue must be discounted to present values before valid comparison of alternative if possible. इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं कि आज का 100 रुपया कल के 100 रुपये से ज़्यादा महत्व रखता है। जो आज का 100 रुपया होता है वो 100 रुपया में हम लोग, अगर एक मोबाइल है, इस मोबाइल का एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कि अगर इस मोबाइल की वैल्यू आज 10,000 रुपया है, समझिए आप 10,000 रुपये में इस मोबाइल को परचेज कर सकते हैं, बट कल को उस मोबाइल की वैल्यू 12,000 हो जाएगी और आज 1 साल बाद कोई आपको 10,000 रुपये वापस करता है तो आप इस मोबाइल को परचेज नहीं कर सकते हैं। तो हमें जब कभी भी कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से लेते हैं। इसको हम लोग इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू present value into 1 plus r की पावर t, and present value equal to future value upon 1 plus r की पावर t, where future f equal to future value, pv is equal to